Assalamu alaikum. I am Noman Sheikh with another video on philosophy. In our previous video, we had a discussion about one of the branches of philosophy that what we called metaphysics. However, in this video, we will be particularly talking about axiology as one of the branches of philosophy. So, in our presentation, we will first talk about philosophy in a general sense. जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी philosophy के हवाले से, तो उसको पहले रिकॉल करेंगे. Then we will be talking about the branches of philosophy. In branches of philosophy, we will try to explore axiology as the branch of philosophy, and we will also discuss the different branches of axiology, and in last we will try to look how axiology and education are interlinked, or what to say, interconnected to one another. As we discussed in our previous video date, philosophy in a general sense can be defined as a person, some of his fundamental beliefs and convictions. Here the conviction word means opinion and judgment. Another definition of philosophy says philosophy is a guide for living. Further, we have some ideas concerning physical objects, our fellow person, the meaning of life, death, God, right and wrong, beauty and ugliness, and the like. Of course, these ideas are acquired in a variety of ways, and they may be vague and confused. और हम ये आइडियाज़, हमारे जो आइडियाज़ हैं या हमारे जो बिलीव्स हैं, वो हम acquire करते हैं by various ways. Thus, they are vague and confusing. All the aspects of human life are influenced and governed by the philosophical consideration. इसको अगर हम ऐसा कह लें कि वाट एवर वी आर डूइंग इन अवर लाइफ, उसके पीछे हमारे बिलीव्स या हमारी फिलासफी हमें गाइड और इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्शंस को. Thus our what to say, thus our actions are said to be the output or result of our philosophical beliefs. अगर हम फिलासफी की ब्रांचेस की बात करें तो फिलासफी कैन बी कैटेगराइज इन थ्री मेजर ब्रांचेस इंक्लूडिंग metaphysics, epistemology and axiology. As we discussed in our previous video that in metaphysics we deal with the nature of reality or existence, और अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो उसमें हम डील करते हैं विद द नेचर ऑफ नॉलेज आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज. एक्सोलॉजी ऑन द अदर हैंड डील्स विद वैल्यूज, और उसके अंदर भी दो ब्रांचेस आ जाती हैं जैसे कि एथिक्स हो गया और एस्थेटिक हो गया हमारा. अगर हम इन तीनों ब्रांचेस को देखें तो दे आर वेरी मच अलाइंड, और व्हाट टू से, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर. वी कैन नॉट मेक देम अपार्ट. अगर जो हमारे मेटाफिजिकल जो बिलीव्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एपिस्टेमोलॉजी को और हमारे एक्सोलॉजिकल बिलीव्स को. तो सो वी कैन नॉट मेक देम अपार्ट. they all are very much interconnected to one another. Exology, like metaphysics and epistemology, stands at the very foundation of the educational process. If we talk about the literal meaning of the word exology, it is basically taken from two Greek words. Axios means value, worth, and logos means reason, theory, symbol, science, study of. Hence, axiology is the philosophical study of value, and value originally meant the worth of something. उसके अलावा द क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूज डील्स विद द नोशन ऑफ व्हाट अ पर्सन और अ सोसाइटी रिगार्ड्स एज अ गुड और प्रेफरेबल. हमारे लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है या फिर हमें किन चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए, किन चीज़ों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए. दिस इज व्हाट डेट वी ऑल डिटरमाइंड आर डिस्कस इन एक्सोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो एक्सोलॉजी में जिन सवालात के साथ हम यूजुअली डील करते हैं दे आर व्हाट इज वैल्यू, वेयर डू वैल्यूज कम फ्रॉम, हाउ डू वी जस्टिफाई आवर वैल्यूज, हाउ डू वी नो व्हाट इज वैल्यूएबल. उसके अलावा व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड नॉलेज, कैन इट बी डिटरमाइन डेट वन वैल्यू इज बेटर देन अनदर. उसके अलावा हमारे जो भी बिलीव्स हैं या हमारे जो भी वैल्यूज हैं डेट वी आर केयरिंग फॉर सो लॉन्ग,
उसको भी हमें एक्सोलॉजी हमें हेल्प करती है उनको क्रिटिकली एवेल्यूएट करने में, क्या वो वैल्यूज़ हमने कैसे अडॉप्ट किए या फिर वो कैसे हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये सारी चीज़ें भी हम इसी में एक्सोलॉजी में डिस्कस करते हैं, जहाँ एक्सोलॉजी हमें इन चीज़ों का आंसर फाइंड करने में मदद करती है। Exology is further categorized in two major branches, and they are ethics and aesthetic. Ethics is the branch of exology, generally deals with moral values and conduct. उसके अलावा ethical theory seeks to provide right values as the foundation for right actions. इसमें हमारे जैसे कि मोरल वैल्यूज आ गए, डेट हाउ टू बिहेव विथ अदर्स, और व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। उसके अलावा द डिसीजन ऑफ गुड एंड इविल, ये सारी चीज़ें हमारी एथिक्स में आ जाती हैं। Both as individuals and within societies, human beings exist in a world in which they cannot avoid meaningful ethical decisions. Thus, schools must teach ethical concepts to their students. अगर हम ऐसा कह लें तो शायद गलत नहीं होगा कि the thing that make humans and animals apart is what ethics. एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमंस को और अदर जो हमारे एनिमल्स है उनको अपार्ट करती है। तो एज एन एजुकेशनिस्ट और एज ए टीचर हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आर वी टीचिंग द राइट वैल्यूज़ टू आवर स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम। इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए एथिक्स एज द ब्रांच ऑफ फिलासफी हमें गाइड करती है कि कौन से मॉरल वैल्यूज़ को हमें अपनी क्लास में प्रमोट करना चाहिए, या फिर हम जिन वैल्यूज़ को अपनी क्लास में प्रमोट कर रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है। तो हमें क्रिटिकली एवेल्यूएट करने में एथिक्स हमें बड़ा हेल्प करती है एज ए टीचर और एज एन एजुकेशनिस्ट। अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में हम जिन सवालात के साथ डील करते हैं, दे आर व्हाट इज गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, इज इट एवर राइट टू टेक समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, आर एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मोरल वैल्यूज एब्सोल्यूट आर रिलेटिव। ये एक बड़ा ही बर्निंग इशू है जो कि हम एथिक्स वाले पार्ट में डील करते हैं कि जो हमारे जो मॉरल वैल्यूज है, आर दे यूनिवर्सल, आर दे रिलेटिव, क्या वो सबके लिए यकसा है या फिर वो डिपेंड करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो दिस इज व्हाट इट आल्सो वी डिस्कस इन एथिक्स। उसके अलावा डू यूनिवर्सल वैल्यूज एग्जिस्ट, कैन मॉरलिटी बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, क्या हम मॉरलिटी को रिलीजन से अलग रख सकते हैं या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये भी हम एथिक्स वाले पार्ट में डील करते हैं। उसके अलावा हु आर व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एथिकल अथॉरिटी। The second and the most interesting branch of exology is aesthetic. In previous branch, we were dealing with moral values and conduct. However, in aesthetic, we deal with the questions related to beauty. So, aesthetic is the realm of value that searches for the principles governing the creation and appreciation of beauty and art in both the higher arts and the things of daily life, such as school architecture, television programs and billboards. हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि how the building should look like or what should be the structure of classes, स्कूल में अंदर बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए, उनके क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या फिर जो हम जो बोर्ड्स इस्तेमाल करें हैं क्लासेस में उनका कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं ये हमारे स्टैटिक वाले पार्ट में आ जाती हैं व्हेन वी आर डिजाइनिंग एनी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान और व्हेन वी आर डिजाइनिंग द करिकुलम। Evaluations of beauty and ugliness fall into the aesthetic realm. Thus, aesthetic valuation is a part of daily life and cannot be avoided. ये जो भी चीज़ें हैं ब्यूटी के हवाले से, दे आर वेरी मच सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे कि द वे आई डिफाइन ब्यूटी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों का भी ब्यूटी का वही व्यू हो। पीपल मे हैव डिफरेंट व्यूज एज फार एज द ब्यूटी इज कंसर्न। तो एज अ टीचर और एज एन एजुकेशनिस्ट हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आवर करिकुलम में रिफ्लेक्ट द सेंस ऑफ static in our students. Static experiences enable people to move beyond the limits imposed by purely rational thoughts and inadequacies of human language.
ये जो ब्यूटी के हवाले से जो भी चीज़ें आ जाती हैं, ये कभी कभार इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि वी डोंट फाइंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू एक्चुअली डिफाइन इट, टू एक्चुअली डिफाइन ब्यूटी। तो उसके अलावा स्टैटिक में जिन सवालात के साथ हम यूजुअली डील करते हैं, दे इंक्लूड व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट शुड आई लाइक, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ ग्रेट पीस ऑफ म्यूजिक आर्ट्स, कैन देयर बी ब्यूटी इन डिस्ट्रक्शन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि हम स्टैटिक में डील करते हैं, क्योंकि हमारे जो आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन में ब्यूटी को महसूस करते हैं, जो उनको, या फिर ऐसा कह लें कि उनको प्लेजर मिलता है when they are doing destruction or destruction related things. Okay, in our last slide we will try to look how exology and education are interlinked, or how they both are interconnected to one another. Exology, by projecting a system of values, proposes educational aims under the form of exological objectives and ideals. जो भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स होते हैं वो सर्टेन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो इस हिसाब से एक्सोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ व्हाट टू से फिलॉसफी हमें ये डिटरमाइन करने में मदद करती है कि हाउ वी कैन ट्रांसफर आवर वैल्यूज टू आवर स्टूडेंट तो व्या द प्रोसेस ऑफ करिकुलम। उसके अलावा द क्लासरूम इज एन एक्सोलॉजिकल थिएटर इन विच टीचर्स कैन नॉट हाइड देयर मोरल सेल्व्स बाय देयर एक्शंस। Teacher constantly instruct group of highly impressionable young people who assimilate and imitate their teachers values structure to a significant extent. अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक्सोलॉजी हमें यह भी डिटरमाइन करने में मदद करती है कि जिन वैल्यूज को हम प्रमोट करवा रहे हैं अपने क्लास में, क्या वो अलाइन है हमारे करिकुलम से या नहीं है। तो इन चीज़ों को क्रिटिकली एवेल्युएट करने में भी हमें एक्सोलॉजी बड़ा हेल्प करती है। अगर हम एक्सोलॉजी और एजुकेशन के कनेक्शन को इस लाइन में समअप करें तो ये सही रहेगा कि विदाउट एजुकेशन एक्सोलॉजी would be deprived of living power, and without the light of exology education would grope about in the dark. Thank you.